शांति हरि ओम। तो समरी कौन करेगा? मैं कर रही हूँ महाराज। हाँ, नहीं करो। प्रणाम चैप्टर 5, रामकृष्ण एंड पीपल ऑफ कलकत्ता ना जी। Change is the law of nature. All artists and historians have narrated, painted, and sculpted to keep Bhagwan Ram and Krishna's life and teachings alive. The Kolkata and Kamarpukur of Sri Ramakrishna's time was pristine, rural, and undeveloped, in stark contrast to today's Kamarpukur. 190 years ago, Kamarpukur was a simple village full of greenery, lakes, flora, and fauna. It was an ethereal place inhabited by simple, honest, unsophisticated, and religious people. The village of Kamarpukur got its name from the pond which belongs to the blacksmiths. Women fill their pitchers from this pond. One hears a bhak bhak sound when water enters the pitchers, but there is no sound once they are full. Similarly, after God realization, one becomes silent. The algae covering the water is like Maya veiling the Sachidanand. Kamarpukur has several Shiv and Durga temples, and all religious festivals, including Durga Puja, are celebrated with singing, dancing, fasting, and vigils. The two cremation grounds remind people that the human body is destructible and the world is impermanent. During evening aarti, the sound of conch shells and bells are heard everywhere. Children listen to Ramayan and Mahabharat stories from their grandmothers. Ramakrishna was born in this serene and beautiful atmosphere filled with love and peace. Sri Ramakrishna was pure, simple, loving, devoted, truthful, and unattached. He learned that love for God helps one overcome grief, misery, pain, and poverty. Sri Ramakrishna enjoyed unspeakable bliss at all times by Divine Mother's blessings as he saw God manifested in nature and people. Calcutta in the 19th century. Sri Ramakrishna's Vivek Buddhi understood that worldly enjoyment and a bread-winning education cannot bring permanent joy. His heart grieved for people in the bondage of Maya. Calcutta people, carried away by Western culture, were argumentative, skeptical, and put their faith in science and reasoning instead of God. Christian missionaries' attack on Hindu culture and religion showed the confidence of the people. It was a time of a renaissance in religion, science, society, and politics. Western education made people give up their own scriptures in lieu of Western literature and teachers. Their motto was not to accept without evidence, and people questioned everything about their religious traditions. Radical youth of Hindu college went to extremes to defy their tradition by actions such as eating beef or smoking cigarettes. English was made the official language and materialism prevailed. Reformers such as Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar established movements to curb Western influence, even by compromising and accepting some Western ideas. At that time, Sri Ramakrishna was deeply immersed in meditation at the Panchvati, a great weapon for destroying the demon of doubt. Sri Ramakrishna his spirituality to destroy the subtle and demon like doubts that poisoned people's minds. To Swami Vivekananda's question, does God exist? Sri Ramakrishna's convincing answer was, yes, I have seen God, just as I see you, only more clearly. God can be seen and conversed with. But who cares for God? People cares for their family and wealth, but who weeps vision of God? If one cries sincerely for God, one can surely see him.
Mathur, Mathur, with his Western thinking, dissuaded the master from losing control in love for God and said even God has to obey his laws. Sri Ramakrishna proved him wrong in and showed that God can by showing a branch of a red hibiscus with both white and red flowers. His disciples tested the master relentlessly. The master was still pleased that they tested him, as his renunciation was so different, touch money unknowingly also. Placed the coin under the master's mattress, and Jogin tested where the master went one night. When the master met Narendra, he saw auspicious spiritual signs and marveled at such a sattvic person coming from Calcutta. By Calcutta people, he meant Western educated, worldly, basically skeptical, worldly of the entire world. The master spoke that bound never अरे God. आवाज क्यों हो रहा है भाई? संजय देखो तो, ये किसका हो रहा है? दिलीप भाई का है क्या? किसका नहीं, फोन कर नहीं करो? मेरा कुछ भी नहीं है। The master spoke that never think of God and waste pleasure in useless talk or work and are bound hand and foot by the fetters of lust and gold. Even losing their children doesn't deter them from producing more children. They prefer the odor of fish baskets to flowers. An expedition to Calcutta. After 12 years of strenuous sadhana, the master discovered all religious paths lead to the same goal. And like Gaur and Nitai, he started visiting the homes of his Calcutta devotees. Generally, Latu Baburam or Ramlal would accompany the master. Sri Ramakrishna's weapon was his humility. At Brahmo Samaj temple, he would bow down, touching his head to the ground, saying salutations to the modern Brahmagyanis. Thus, Sri Ramakrishna taught some humility to his arrogant disciples. Sri Ramakrishna would bow down more, and then only the disciples would learn to bow down to him. The young Bengal, comprising materialists, Christian converts, and sectarianists, started visiting the master. For instance, Girish had attended Brahmo Samaj, but was unclear if God existed and which religion he should follow. Sri Ramakrishna's magical touch even transformed ruffians like Manmatha and Brahm, bohemians like Girish, to become lovers of God. Sri Ramakrishna saw mere clay bricks in the Viceroy's palace, not the glory of British rulers that people normally saw. He said, only God's splendor is real. All other splendor is temporary. When the master went to see Fort William, the Sikh soldiers said, victory to the Guru, and dropped off their rifles to the ground. Thus, Sri Ramakrishna conquered the fort seated from his carriage itself. The master said, just as going down on a gentle downward slope, such as in Fort William, one does not even feel it. So men do not realize how far they are dragged down by women. When people did not accept what the master said, he would immediately touch them to deflate their egos. So we should approach God and teachers with humility. Then only we can understand the truth correctly. The low mindedness of Calcutta people. The master said to M that majority of people's mind was on lust and gold, and only one or two people's mind was turned to God. This was from his carriage when he was examining the people, because to him the people were made of clear glass and he could clearly see inside of every person's mind. We must not focus on luxury and minimize our wants. He even quarreled with the Divine Mother as it was difficult to move those people's thoughts to a higher plane, and he begged for some good people who could be spiritually awakened in one or two words. Sri Ramakrishna's divine life and immortal message will transport
humanity to higher and higher realms age after age. Renunciation is not for everyone. Sri Ramakrishna knew the problems of those who came to him for help. He advised people according to their capabilities. To householders, he advised to renounce mentally, not outwardly. Live in this world and also love God. He told them to hold God with one hand and do their duty with the other. And by visiting him, people will develop non attachment as they will realize that worldly relationships are temporary. He advised that after birthing one or two children, husband and wife should live as brother and sister. None can taste divine bliss without giving up animal feeling. To get rid of lust, we should pray to God sincerely, and He will certainly listen to our prayer. Sri Ramakrishna explained to Ishan, one can renounce by God's will only. We might not be pure enough to see God's will in everything, but everything happens by God's will. So, renunciation comes when one reaches the limit of enjoyment. Hari Om Tat Sat. Okay, thank you. Good. Done well. I have followed it. I was following the whole thing. You have very nicely done this. Yes, very sure. Sometimes I Done. feel that you should be told every day to do something. Yes, yes. Very good. So, thank you. Shall we do the questions now? First of all, Shivani. महाराज, डू वी हैव एनफ क्वेश्चंस? हम लोग सोच रहे थे आप कुछ ब्रीफ भी करेंगे एक बार समरी के बाद। हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चंस में काफी डिस्कशन हो जाता है, मुझे बोलना पड़ जाता है। जी 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 महाराज, ठीक है। शिवानी, वो तो थी अभी। शिवानी जी हैं अभी, मगर उनका वीडियो और माइक बंद है। एक बार अनम्यूट करिए शिवानी जी। मे बी वो कहीं ऑक्यूपाइड है, थोड़ी देर में फिर अवेलेबल होंगी। दूसरा क्वेश्चन ले दिलीप भाई, और किसी को लो, दिलीप भाई को लो। दिलीप भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। दिलीप भैया का माइक अनम्यूट करना है। आगे मैदान में। हाँ, प्रणाम महाराज जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ। My first question, page number 174. Maharaj ji, what we read or see today is not real, because as per the article, it is in the first paragraph, it is written, poets, artists, writers, playwrights, and historians of different ages have used their imagination. So Maharaj ji, my question here, these all scriptures and the stories, whatever it is for the Ram, Krishna, or all previous, is an imagination. Because See what you are seeing, Dilip bhai. yes, There is also imagination. मैं और तुम जो देख रहे हो ना, ये सब इमेजिनेशन है। बराबर बदलता जाता है। What you see today. हाँ। नहीं ये हाँ, ये रियल, ये सत्य नहीं है, मिथ्या है। वेदांत पक्का बोलता है। नहीं महाराज जी, ये यहाँ पर वेदांत का सवाल नहीं आ रहा है, इनका ये कहना है। अरे मैं वेदांत ला रहा हूँ, तुम पोएट्स की बात कर रहे हो। हाँ। और मैं वेदांत की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी। हाँ, तो अगर वेदांत में कहते हैं कि यह सब इमेजिनेशन है, तो पोएट ने अगर इमेजिनेशन किया तो आपको इतनी कष्ट क्यों हो रहा है? They may not use what you see. तुमको जो सत्य लगता है, पोएट जो है वो और कुछ बता देते हैं। हाँ। ये यही मेरा पूछना है महाराज जी, कि जो ये बताया गया है पोएट्स वाला या राइटिंग्स में आया है,
ये 100% सत्य है या नहीं हमें नहीं नहीं मालूम। नहीं, ये सब इमेजिनेशन है, कहानियां बनाते हैं तो। अच्छा 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 अच्छा, I see. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सीधा बोल रहा है ना, पोएट्स आर्टिस्ट राइटर हाँ। हिस्टोरियन have made their images to describe those places। यस, हाँ हाँ, और अब तुम वहां जाके देखोगे तो देखोगे बनारस जैसा किताबों में पढ़ा, और अपने जयराम बाटी का मार्गुबर बिल्कुल बदल गया है। जी, वो तो टाइम भी है, 100 साल का टाइम में बिल्कुल बदल गया है। जो किताब पहले हाँ पढ़े थे वो जी, बिल्कुल बदल जाता है। राइट, अच्छा अच्छा, ओके। महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 174। महाराज जी, ये दो नदी जो बताई है, मुंडेश्वरी एंड द्वारकेश्वर। बाबा ये मेरे कुछ नहीं मालूम, मैंने पहली बार सुना है, ओके बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं जानता। जी, बराबर, राइट। अच्छा महाराज जी, एक यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि ये जितनी नदी है या पानी है, ये सब सूरज के कारण है। सूरज से भाप होती है और तो ये कैसे कहा गया है कि ये नदी पवित्र है और ये नदी के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं है? व्हाई इट इज सो? ये क्योंकि तुम मत आखिर मानो। में सब पानी अरे समुद्र में जाता है। अंग्रेज लोग तो नहीं मानते गंगा को पवित्र। पर और महाराज, तुम्हारी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। नहीं नहीं महाराज, महाराज जी, अरे हाँ, उसके बाद में पूरी कहानी लगा देते हैं गंगा की। अच्छा, गंगा जो है शिव जी के सिर कट जटा से निकली है, ऐसा सब कर देते हैं। तो अब ओके। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम लो उसको, यो लो या मत लो। अच्छा, तो महाराज जी, ये ऊपर वाले सेंटेंस से कौन हम कोइंसाइड कर सकते हैं कि दिस इज एन इमेजिनेशन, अरे जिन्होंने ये इमेजिनेशन कहानी तो है। बनाई? हाँ, गंगा गंगा इमेजिनेशन तो किया है। हाँ गंगा तो पानी है, लेकिन हमने बता दिया है गंगा जो है एक नारी है, एक ये एक देवी है। हाँ, तो अब तुमने तो देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, किसी ने इमेजिन कर दिया कि देवी है, किसी ने देखा होगा। अब तुम ओके, मानो या ना मानो, जी जी, हमारा कहना है कि मानने में क्या बुराई है। नहीं नहीं, कोई अब बुराई नहीं, प्रश्न है, बिल्कुल। क्या प्रश्न उठाने की क्या जरूरत है, मानने की बुराई क्या। महाराज ठाकुर को तो माँ गंगा दिखी थी। अरे ठाकुर को इतनी सारी चीजें दिखी थी, ठाकुर को जितनी बातें हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन दिलीप भाई बोल रहे हैं ना, वो हाँ सब दिखे थे, इसलिए हम स्वीकार करते हैं बहुत सारी बातें। जी, और हम महाराज, आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम उठ रही है। महाराज, आध्यात्मिक होंगे तो हमारे दृष्टिकोण, सारा जगत का दृष्टिकोण बदल जाएगा हमारा। अच्छा, yes, महाराज, एक माता जी ने कहा था कि जो पानी है वो ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवादी। हाँ जी। yes, महाराज जी, Swami ji, one interesting point here. Can I say that on Ganga? No, It's very don't go okay. into discussions. Okay, okay, okay. महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 176, फर्स्ट पैराग्राफ। There are two cremation grounds located at opposite ends of the village. Bhuti's cremation ground is near Bhuti's canal. Bhuti's Moral's cremation ground is near a large ground. There are two big banyan trees on the east side of that pond. It is a serik. There is in the evening. The two cremation grounds remind people that the human body is destructible and this world is impermanent. हाँ महाराज जी, ये सेंटेंस इसमें क्या है, प्रश्न तो नहीं है। नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इट इज रिटन हियर दैट देयर आर टू क्रिमेशन ग्राउंड एंड अरे दो क्रिमेशन ग्राउंड है, दो स्मशान है। नहीं, देयर इज ए सेपरेट क्रिमेशन ग्राउंड फॉर भूतास। तो ये क्या चीज है? भूत के अरे लिए कहाँ भूता क्या है। क्या है? Bhuti's cremation ground is near Bhuti's canal. The Buddhu Moral's cremation ground is near a large. उसका नाम है, नाम दिया है, ये नाम है। They are name of two people. नए घोष नहीं है, भूत ना हाँ। आदमी, कोई आदमी का नाम है, उसके नाम से कर दिया है।
ये अरे नाम है, ओके, और राइट महाराज, एंड देयर क्रिमेशन ग्राउंड, ये नाम है। ओके, भूति कैनाल, भूति नाम की एक नदी कैनाल है। भूति भूति किसी का नाम भूति था। कैनाल के पास में हाँ उसका हाँ जो है वो क्रिमेशन ग्राउंड है, उसका नाम है भूता मुरल क्रिमेशन ग्राउंड। हाँ, बुधुई कोई भी को नाम से कोई था। अच्छा, नाम तो कोई आदमी था, उसका नाम से कर दिया है। अच्छा, उसके अंदर अब आखिरी सेंटेंस है उस पैराग्राफ का, द टू क्रिमेशन ग्राउंड्स रिमाइंड पीपल दैट द ह्यूमन बॉडी इज डिस्ट्रक्टेबल एंड दिस वर्ल्ड इज इम्परमानेंट। हाँ, हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए कि क्यों पूरा दो यहाँ बना इंदौर में तो कहीं वो स्मशान दिखता ही नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चलता। ये तो छोटा सा गांव है, इसमें दो दो स्मशान है। हाँ, दो स्मशान बार बार पता लगाते हैं कि अरे मरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके, अच्छा। this this cremation ground reminds us हाँ that one day we have to go there. हाँ, लेकिन लोग ऐसे हैं कि अपना दोस्त मर गया, आहा हा बड़ा बुरा हुआ, दूसरे दिन फिर भूल जा। नहीं तो वो कहते हैं ना महाराज जी, ये स्मशान वैराग्य है। मैंने स्मशान, अरे दो बने रहे ना तो बार बार रोज रोज मरेगा, कोई ना कोई मरेगा वहां। हाँ ये तो पता तो चलेगा कि अनित्य है जगत। हाँ हाँ, ये बराबर, ये छोटी जगह देयर इज ऑलवेज देयर। महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 176, he learned how with love for God one can overcome grief and misery, pain and poverty. Maharaj ji, how Ramakrishna Dev developed love for God? Was it a God gift or because he was an avatar? अरे कोई भी है ना, हाँ, एनीवन कैन हैव लव फॉर गॉड। बच्चे हैं उनको जल्दी से हो जाता है, वो अपने माता पिता से सीख जाते हैं। तो उसमें क्या है, कोई भी सीख लिया है। गांव में लोग जो हैं वो भगवान में प्रेम करना जल्दी सीख जाते हैं, सरलता होती है उसके कारण। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे संत भगवान को हमारी इच्छा है तो लगता ही नहीं कि भगवान है। हमको तो लगता है भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो नहीं महाराज जी, मेरा यहाँ पे आई एम नॉट क्लियर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये है कि मेरा ये पेज नंबर बोलो तो 176 लास्ट पैराग्राफ के ऊपर की 2 लाइनें हैं। ही लर्नड हाउ विथ लव फॉर गॉड वन कैन ओवरकम ग्रीफ, मिजरी, पेन एंड पॉवर्टी। हाँ, उन्होंने ये समझा कि भगवान का प्रेम करने पर हम दुख कष्ट से ऊपर उठ जाएंगे। हाँ, ये सीधी बात लिखी है, उसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। ऊपर की लाइन में लिखा हुआ रामकृष्ण वाज बोर्न इन दिस एटमॉस्फियर। हाँ हाँ, तो मेरा ये पूछना है कि रामकृष्ण देव को बचपन से ये मिला था, ये अवतार होने के कारण ये? नहीं, बचपन से। अच्छा, वो वातावरण ऐसा सरल वातावरण है, भगवान के प्रति प्रेम का वातावरण है, जगत अनित्य है, ये स्वभाव बचपन से ही मिले थे सब। महाराज जी अभी आपने बोला कि गांव के लोगों में सरलता होने के कारण लव ऑफ गॉड डेवलप्स मोर नेचुरली, इजीली। तो शहर के लोगों में क्या होता है जिसके कारण उनमें ये फीलिंग नहीं आती महाराज? उनके लिए बाहरी जगत ज्यादा सत्य प्रतीत होता है ना। यस, बाहरी जगत को ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है, और माइंड भी शायद ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ, वही तो मटेरियलिज्म ज्यादा होता है ना, भौतिकवाद। जी जी जी। महाराज, पेज नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज माय जनरल क्वेश्चन कि रामकृष्ण देव ने सिर्फ कलकत्ता के बारे में बात की, ऑलवेज ही हैज स्पोकन अबाउट कलकत्ता and he was worried about the Calcutta people and he wanted to make Calcutta people religious. तो उसका क्या कारण? For Ramakrishna Dev, was he not knowing that same thing is happening throughout India? जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने देखा था और समझा था, इन्होंने कहीं बात ही नहीं की है सिर्फ कलकत्ता के सिवाय। ये मेरा कलकत्ता में हमेशा रहे वो। हाँ, पर तो कलकत्ता को देखा, उसमें उसको आपत्ति क्या है? नहीं, अरे आपत्ति नहीं महाराज जी,
मेरा आपत्ति कहीं पे भी नहीं है, मेरे और इनसे आपत्ति कहाँ करूंगा। मेरा सवाल ये है कि रामकृष्ण देव इतने जागरूक थे, उनको पूरा संसार के बारे में मालूम था, हिंदुस्तान के बारे में मालूम था, पर इन्होंने थ्रू आउट जो बोले हैं कि कलकत्ता की मेरे को फिक्र है, कलकत्ता पहले ये था अब ये हो गया, वहां के लोग ये थे, मैंने उनको प्रणाम करना सिखाया, ये तो ये सिर्फ कलकत्ता के लोगों के लिए ही फिक्र कर रहे थे। और इसे जब वो वेट कर रहे थे श्री राम स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि स्वामी विवेकानंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, ओके। जो संदेश उनको सारे विश्व को देना था, हाँ, वो किसको देंगे? ओके। उसके लिए विवेकानंद को उसके लिए संत के लिए बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब विवेकानंद आए तब उन्होंने क्या कहा? हाँ, अरे संसार के लोग जो हैं कैसी बुरी हालत में है, उसको देख। ओके। ये कहा था स्वामी विवेकानंद को, ये हाँ। संदेश दिया था कि नहीं? जी जी बिल्कुल कहा था ये। हाँ, कि वो कीड़ों के सिरे संसार के लोग जो हैं कीड़ों के लिए इलबिल कर रहे हैं, उनको जरा देख, संसार के लोग। अच्छा, ओके जी महाराज। तो he was महाराज स्वामी जी कि ये काम महाराज- स्वामी जी के द्वारा किया जाएगा संसार में और हिंदुस्तान में। हाँ? ये काम पूरा रामकृष्ण देव का जो इन्होंने कलकत्ता की फिक्र की थी, वो पूरी दुनिया की फिक्र करने के लिए इन्होंने स्वामी जी के जुम्मे कर दिया था ये काम। स्वामी जी ने और स्वामी जी रामकृष्ण मिशन चला दिया। अच्छा, बराबर जी जी। महाराज एक बात ये भी है दिलीप भाई कि अगर ठाकुर अपने मुंह से ये बातें करते समाज में कि भाई सारे संसार में, तो सबको पता हो जाता कि भाई ये आदमी तो कहीं बाहर गए नहीं, उनको कैसे पता चल गया? मेरा ये नहीं, वो ये बात उनकी समझ में नहीं आती लोगों को। हाँ, और अवतार तो छुपा रहना अधिकारी होना चाहिए ना। जी अरे जी ये लोग तो जितने आ रहे हैं कलकत्ता के कलकत्ता माइंडेड लोग ही हैं, उनको यही बोलूं मैं, और मैं बोलूंगा इससे ज्यादा दूसरी बात लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। वो तो अपने परिवार से संबंधित है, अपने परिवार के दुख में ही है, तो उनको परिवार के सुख दुख की बात करो, ज्यादा से ज्यादा कलकत्ता की बात करो। जी महाराज। और दूसरी बात यह है, कलकत्ता जो है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यस यस ये जगत था, बड़ा एक नगर था, हाँ। दुनिया की कैपिटल था, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड। Yes. जी He wanted to make an example of one place. यस That is the thing. Now, Maharaj, next question. Question number 6, page number 179. ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, Most of the young people of Calcutta took initiation, so to speak, from 3 gurus: David Hare, Henry Vivian Deroggio, and Thomas Babington Macaulay. हाँ, ये इन तीनों को मैं कुछ नहीं जानता हूँ। These men. Zero. Okay. Zero. Okay. Maharaj, next question. Page number 182. महाराज जी यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं पेज नंबर 182 पे, put some money in my hand to test me. As soon as the doctor placed money in the palm of the master's hand, his breath stopped and his hand became numb. The doctor was dumbfounded. Such an experience had never been recorded in the annals of the science. ये एक है, और ऊपर उन्होंने फ्लावर का एग्जांपल दिया है। 2 एग्जांपल है और दूसरे भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि महाराज जी, देन spirituality is more powerful or the science? After all, science is doing all this work now, what we see today in this last 2 centuries. और यहाँ पे भी ये लिखा गया है कि कलकत्ता जो पहले था और आज में फर्क आ गया है, पहले न सड़क थी न फोन था और ये सब था। तो क्या कि हमने the changes in Calcutta and Kamarpukur explained in the beginning of the article is miracle or a scientific advancement and development? ये क्या चीज? अरे ये भौतिक मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेने देना? अच्छा, तो जो आज अरे सड़क बनेगी नहीं, स्कूल बनेगी नहीं,
हाँ। ये तो मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, 100 साल में कहीं भी हो जाएंगे, उससे स्पिरिचुअलिटी का क्या लेना देना। ओके, सो महाराज जी, इट मीन्स जो आप बता रहे हैं बहुत सही है कि हमने ये डेवलपमेंट जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहे हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी ओर न भागते हुए वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ। उससे क्या लेना देना तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी का? स्पिरिचुअलिटी अलग है, यही तो बोल रहा हूँ तुमको बार बार। ओके जय महाराज जी। 8वां सवाल है महाराज जी, व्हाट इज टेम्पटेड द क्राउड टू विजिट रामकृष्ण देव? वाज द क्राउड स्पिरिचुअली डेवलप्ड और हैज कम जस्ट फॉर दर्शन? पेज नंबर 187, पेज नंबर 187। हाँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 4, paragraph number 3. As he continued to talk to the people who visited him, Ramakrishna gradually developed cancer in his throat. A few days after his throat began to hurt, he noticed that the crowd of spiritual aspirants at Dakshineswar was growing daily. In an ascetic mood, he then told the Divine Mother, "Why do you bring so many people here? You have created a huge crowd. I have no time even to bath and to eat. This is a perforated drum. He long will it last if you go on beating it day in and day out." तो महाराज जी, ये जो क्राउड आ रहे थे वे जस्ट दे कम फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ रामकृष्ण देव, और दे वर ऑल फॉलोअर्स ऑफ रामकृष्ण देव एंड दे वर रामकृष्ण। अरे पता चला कि रामकृष्ण एक बड़े संत हैं। हाँ हाँ, तो केशव चंद्र सेन ने कहा तो केशव चंद्र के सेन के फॉलोअर्स आने लगे। उन्होंने दूसरे को जाके कहा कि अरे बड़े अच्छे संत हैं, हाँ। वो आने लगे। कुछ लोग जो है वो क्यूरियोसिटी के आले, देखे तो सही कौन है, और कुछ लोग सच्चे आध्यात्मिक विचार वाले थे, वो आए। अलग अलग प्रकार के लोग आने लग गए ज्यादा। तो ये इन्होंने रामकृष्ण देव ने ये क्यों कहा माँ को, व्हाई डू यू ब्रिंग सो मेनी पीपल हियर? वो कहते हैं कि अरे भाई, मेरे को तुम इतने लोग लाओगे तो मैं कितने लोगों का आध्यात्मिक भला कर सकूंगा। हाँ। अरे इतने सारे लोग आए, वो कोई पूरे 100% मटीरियलिस्टिक है, लेकिन वो देखने के लिए आए, मैं कैसे उनकी मदद करूंगा? मैं तो ऐसा है ड्रम हूँ, एक उसमें छेद हो गया है, इतना पीटोगे तो वो तो फूट ही जाएगा। यानी मेरे शरीर में अब ताकत है नहीं, तो इतने लोग यहाँ पे दोगे तो मैं कितना का आध्यात्मिक भला कर सकूंगा। आध्यात्मिक भला करने में भी तो आध्यात्मिक नुकसान होता है ना, फिजिकली और मेंटली कष्ट होता है कि नहीं होता? तो वो मैं आखिर कितना सहन कर सकता। ओके, राइट। एंड महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मंकी रिनंसिएशन? पेज नंबर 189, लास्ट वर्ड। हाँ, ये क्लास बहुत अच्छी हुई है आज, बढ़िया अच्छी हुई है। यहाँ पे तो लिखा है, अरे कितनी अच्छी बात है, वैराग्य हुआ। तो एक सप्ताह के लिए दिलीप भाई को वैराग्य हो गया। दिलीप भाई ने सोचा है कि एक सप्ताह के लिए हम आश्रम में जाके, ये मंकी रिलेशनशिप, मंकी है ना, एक दिन एक सप्ताह के लिए थोड़े दिन के लिए रहा, वैराग्य हो गया। अच्छा, यानी सुनो सुनो, वैराग्य। घर में किसी की मृत्यु हो गई, हाँ, और उनको जलाने के लिए गए। हाँ ओ, ये तो संसार अनित्य है जी, छोड़ो, अभी चले गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बाद महीने भर बाद घर पे चिट्ठी आई काशी से कि मेरे को काशी में जॉब मिल गया है, मैं ठीक हूँ, वापस आ रहा हूँ, चिंता मत करना। ये वैराग्य कितने दिन रहा? थोड़ा सा रहा जी। वैसे उसको ये बंदर का मरकट वैराग्य बोलते हैं। बंदर का जैसा छटपट करने का, थोड़ी देर के लिए बंदर शांत रहता है, दूसरे मिनट फिर झपट कर उधर उछल कूद करने। अच्छा जी, राइट महाराज जी, प्रणाम। बस चलो महाराज, एक अच्छी स्टोरी मालूम है मुझे, बताओ क्या? है? नहीं बताना अभी, बताने तो फिर सब लोग चलते रहे, सभी बताने लगे आएंगे। वो मालिनी तो बैठी रहती है बताने। चलो शिवानी नहीं आई। हाँ है महाराज, है महाराज जी, है।
पूछो। महाराज मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 176 हाउ श्री रामकृष्ण लर्नड अबाउट द लव फॉर गॉड वन कैन ओवरकम ग्रीफ मिजरी पेन एंड पॉवर्टी। भगवान को प्यार करोगे तो ये होएगा। एक एग्जांपल देख के बताइए महाराज। और भगवान में प्रेम लगा हुआ है तो संसार में प्रेम क्यों, भगवान संसार में क्यों प्रेम जमन जाएगा? भक्ति नहीं, में पर लगे हुए मिजरी आनंद 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 आ रहा है मुझे, तो अब ऑटोमेटिकली संसार छूट जाएगा। तो मिजरी पेन इन सब में कैसे? हाँ, यदि भगवान में मन लगाओगे तो मंदिर में जाओगे, पूजा करोगे, ये करोगे, धीरे धीरे मन उसमें लगता रहेगा तो संसार में मन कम हो जाएगा। भगवान और संसार तो अलग है दोनों। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। तो जहाँ भगवान में मन लगाओगे तो अपनी वासना इच्छाएं कम होगी, तो सीधी बात। ठीक महाराज, सेकंड क्वेश्चन है पेज 189 हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मंकी रेनंसिएशन एंड रेनंसिएशन। अभी बोला एक्चुअल जैसी बात किया ना, मंकी रिलेशन है, थोड़ा सा कोई विशेष अवस्था हुई, देखा कि एक संसार में एक व्यक्ति बहुत कष्ट पा रहा है, अरे राम राम इतना कष्ट पा रहा है, बड़ा बुरा है ये, थोड़े दिन तक रहा, फिर बाद में भूख वही, यानी कोई आदमी मर गया, अचानक मर गया, तुमको संसार से वैराग्य हो गया कि संसार भी अनित्य है, और फिर 2 दिन तक रहा, उसके बाद में फिर संसार को सत्य मान के हमको भोग करने लगे। इसलिए सावधान रहो विचार के। जो है मंकी रिलेशनशिप यानी वो थोड़ी देर समय तक रहता है, थोड़े दिन रहता है, फिर चला जाता है, ऐसा वैराग्य उसको मंकी रिलेशनशिप। विचार के द्वारा जो विचार के द्वारा जो वैराग्य होगा वो सच्चा है। राइट। अच्छा, उसका क्या कंडीशंस रहेंगी? विचार करो, नित्य नित्य विवेक, सब बुरा विवेक चूड़ामणि भरा हुआ है, ये जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, निरंतर सब चीजें परिवर्तित हो रही है, नित्य वस्तु बगैर भगवान ही है और कुछ नहीं है, पवित्र है तो केवल परमात्मा है, बाकी देह जो है वो गंदा है, वो अपवित्र है। अशुचि अशुचि विवेक, नित्यानित्य विवेक, जड़ चेतन विवेक, ये विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा ये जानना कि ये जगत जो है वो अनित्य है और दुखपूर्ण है, ये है प्रोसेस ऑफ विवेक। इसके द्वारा जो वैराग्य होता है वो स्थायी वैराग्य। ठीक है महाराज, दैट्स ऑल। प्रणाम महाराज। अच्छा सतीश, सतीश बेग। महाराज प्रणाम महाराज, एक मिनट महाराज, निकाल दें। जी महाराज। पूछो महाराज, एक मिनट अजय जी। हाँ महाराज, मैंने जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ से तो मिले नहीं आर्टिकल से। पहला क्वेश्चन है महाराज, यू कोटेड फ्रॉम स्वामी तुरायानंद लेटर सैटरडे को महाराज, जो आपकी क्लास होती है ना उसमें से, लेट द बॉडी बी सिक ओ माइंड यू रिमेन इन ब्लिस। महाराज, माइंड एंड बॉडी आर सो डीपली कनेक्टेड फ्रॉम विदिन, हाउ द माइंड कैन रिमेन इन ब्लिस व्हेन द बॉडी इज सफरिंग? हाउ कैन वी? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ट्रू। इट इज नॉट विचार के प्रैक्टिकल। द्वारा, विचार के द्वारा, यानी शरीर में दुख होवे तो भी उसको देखो, शरीर में दुख हो रहा है ना, तो यो माइंड को शरीर के दुख से अलग करो। जी जी जी। ये और देह को भी, बॉडी को तो हम देख सकते हैं ना। जी महाराज, जी महाराज। तो ये विचार के द्वारा सोचो कि मैं देख सकता हूँ बॉडी को, यानी बॉडी तो एक ऑब्जेक्ट है, मैं बॉडी से अलग हूँ, ये विचार करो। जी, विचार ही हो सकती है, विचार ही हो हाँ, सकती है, विचार और उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठो,
जी अनकंफर्ट चाहिए भी साधना है। अनकंफर्टेबल पोजीशन में देखो बैठो तो शरीर में कष्ट हो रहा है, फिर भी बैठे रहेंगे, उस कष्ट को जी देखेंगे, रिपेयर करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। तो विचार के द्वारा ठीक और है अनुभव के द्वारा, प्रैक्टिसेस के द्वारा देह सेपरेट है ये एक्सपीरियंस, और उसके बाद में फिर देह में कुछ होता है तो चिंता नहीं करता, अरे देह में होने लगे, आत्मा को कुछ नहीं होता, मैं मन जी अपने भगवान में लगा रखूंगा। बड़ी साधना के द्वारा होता है, अपने आप नहीं होता। जी महाराज, जी महाराज। और सूर्यानंद जी कर सकते थे, देह जाने दुख जाने मन तो आनंद। राइट राइट महाराज जी एक मिनट, महाराज जी यहाँ पे ये तकलीफ आती है कि जब देह को ज्यादा कष्ट होता है तो माइंड चलना भी बंद हो जाता है कि ये सोचे कि ये तो शरीर को तकलीफ हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है, या मैं भगवान का नाम भी लूं और ये इट इज नॉट पॉसिबल। उस स्थिति में क्या, जैसे इन्हें बताया कि दोनों हाँ, ये 80 बरस की उम्र में कुछ नहीं संभव है दिलीप भाई। ये प्रैक्टिस 30 बरस की उम्र में होता चाहे करनी चाहिए, कि देह से अलग करना है मन को। अच्छा, ये ट्रेन 80 बरस से पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है, मैं और देह एक ही हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ इतना आसान नहीं है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। चलो in हाँ, the next. in the inspired talks Swamiji also says feel nothing, know nothing, do nothing, have nothing, give up all to God. Maharaj, my question is, it is okay, I know nothing, I do nothing, even I have nothing, but it is very difficult to say I feel nothing. I feel good and bad, heat and cold, praise and blame. It is very difficult to overcome difficulty, so long as you have mind and your body. That is true. तो है ही, क्या करोगे? माइंड महाराज जी साधना अरे तो हम यही सब है। इस उम्र में मन के गुलाम है भाई, हाँ जरा से शरीर के गुलाम है, जरा सिर दर्द हुआ कि भगवान भाग जाता है, जी फटाफट भगवान बिल्कुल भाग जाता है, जरा सा सिर दर्द होते ही कहाँ ध्यान होता है। महाराज ये दुर्भाग्य है कोई हमारा। कुछ गलत कहता ही है तो भी मन जो है बहुत विचलित हो जाता है। वो तो होता ही है, क्या करोगे? विचार वही लेकिन हम साधना, साधना तो तो करते हैं ना। कंटिन्यूअस साधना, विचार। ये मैं दही देह नहीं हूँ, मैं देह हूँ, मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, ये बोल लिया। लेकिन जब बैठते हैं तो 5 मिनट में देह पता चल जाती है, मैं देह हूँ हो जाता है, मैं देह नहीं हूँ ना, 5 मिनट में मैं देह हूँ हो जाता है। इतना आसान है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल। इसलिए ठाकुर ने कहा कि राम राम जपो और बिल्कुल सरेंडर करो, इसलिए ठाकुर ने बोला। वो भी इतना आसान है क्या? नहीं, वो भी आसान नहीं है हमारा। अरे नाम ही हमारा नहीं। ईगो कहीं कहीं से आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जी, जे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब देह को कष्ट होता है तो देह को विचार करके देखो और उससे अपने आप को अलग करके सोचो कि मैं देह नहीं हूँ। इसी प्रकार जिसको मानसिक कष्ट होता है, देह का नहीं, मानसिक कष्ट होता है, या वो चिंतित होता है, एंग्शियस होता है, तो उसको भी उसका विचार किस तरह किया जाए महाराज? वो जैसे मन में अच्छा चिंता हो रही है ना, हाँ हाँ, तो चिंता को यू हैव टू, पॉइंट इज कि चिंता को और मन को, देखने वाले मंत्र को, मन को और चिंता को वाले मन को, दोनों को मेंटली फिर अलग करना पड़ेगा। हाँ, वहां से भी अलग करना पड़ेगा। वह करना पड़ेगा, जस्ट लाइक द बॉडी, जस्ट लाइक द बॉडी। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज। Maharaj, last question. This question I already asked last Sunday. How to lead one person's life in a household? The rules prescribed in Uddhav Gita seem to be outdated. महाराज वो सभी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, उसकी स्पिरिट जो है वो ही हम फॉलो कर सकते हैं। इसे वही तो, व्हाट यू से इज करेक्ट, फॉलो द स्पिरिट, हैव योर ओन रूल्स, कुछ तो रूल्स बनाओ। जी महाराज, जी महाराज।
और हाउस होल्डर डिवोटीज के साथ, हाउस होल्डर अदर हाउस होल्ड डिवोटीज के साथ में, जो भक्त हैं उनके साथ में रहने का प्रयत्न करो। जैसे हम भी तो हैं, तो हम लोग तो साधु रहते हैं जीवन में है, मॉडर्न साधु हैं, तो हम साधु के साथ में रहते हैं। और क्या करें? जी जितना एप्लीकेबल होता है उतना ही एप्लीकेबल करें, बाकी अपने ट्राई टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल। जी महाराज, मन से तो कर ही सकते हैं महाराज, मन से तो कर ही सकते हैं कि हम जो है हाउस होल्डर नहीं, हम वानप्रस्थी हैं, संसार में रह रहे हैं, ऐसा है लेकिन कि यू नो व्हाट यू कैन डू इज बीच बीच में निर्जन में जाया करो। जी महाराज जी, 7 दिन 15 दिन अगर हो सके किसी आश्रम में निर्जन में जाए। जी जी महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज निर्जन में जैसे हमारी मेंटेलिटी के स्पिरिचुअल मेंटेलिटी के साथ जा सकते हैं क्या? हाँ, यदि निर्जन में जाके देखो ना क्या पे, अरे भाई नहीं 2-3 लोगों का ग्रुप करके सेम मेंटेलिटी के। अब देखो ट्राई करो, देयर आर वेरियस मीन्स इन विच थोड़ा सा संसार से अलग हो सके। अच्छा है, 2-3 ग्रुप एक ही प्रकार के भक्त मिल जाए तो चले जाओ, थोड़ा सा एकांत में रह लो। जी निर्जन में जाके मोबाइल बंद करना पड़ेगा ना। अच्छा कुंडू चलो तो कुंडू। हाँ महाराज। हाँ भाई महाराज एक मिनट, ये वीडियो। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन इज Thakur, page 181. Thakur showed Mathur Babu red and white hibiscus on the same branch as a proof of God's omnipotence. Yes. But this is a natural phenomenon, though not very common. I have seen it quite a few times, not only hibiscus, but other flowers also. Now, should we take it as supernatural? In the event of Sri Ramakrishna, you have to take it as supernatural. महाराज ये तो ऐसे हो गया जैसे like some knowledge was not there at that point of time and he intuitively told something, but now we know the genetic cause of it in the plant so मेरा एक ही कहना है कि at that point of time it was okay to consider it as supernatural, but अभी लगता नहीं है कि we are making it his profound insight, we are making it trifle. ये सादा और लाल कर देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ। देखो एक ही ब्रांच में एक व्हाइट और एक रेड, यस ऐसा तो नहीं होता, आज के जमाने में भी नहीं होगा। नहीं होता है महाराज, देयर इज ए परफेक्ट थिंग। आई वेंट थ्रू द बॉटनिस्ट के साथ, मैंने खुद देखा पहली बात है, एंड देन बॉटनिस्ट के साथ बात किया, बोले जेनेटिक म्यूटेशन होता है, दिस आर नॉट वेरी कॉमन बट होता है। दिस इज समथिंग लाइक कोलंबस ने बोला कि अब मेरे साथ अत्याचार करोगे तो तुम्हारा मून ये एक्लिप्स हो जाएगा, because he knew that moon eclipse होगा, but those natives they never knew. आजकल कटिंग करके लगा रहे हैं, जैसे एक रंग और दूसरा रंग मिला के जो ग्लो कर रहे हैं उसमें होता है, ये अक्सर मिलता है। ना ऐसा है कि ये ओके वो मथुर बाबू ने कहा ना, मथुर बाबू ने तो कहा था कि ये ऐसा हो सकता है क्या? जी जी हाँ, और ठाकुर ने कहा हो सकता है। ऐसा तो कभी ठाकुर किसी ने कहा नहीं कि भाई एक पुरुष है वो स्त्री हो सकता है क्या? नहीं, वो तो आज वो एक भगवान चाहे तो हो सकता है। Swamiji, we are going off track, isn't it?
that we are taking, going to the detail of the example is to indicate something. It is not to dissect the example. Yes, that is the point. That's the point. Mathur Babu said, सुनो भाई, कुंडू. हाँ महाराज. मथुर बाबू ने कहा कि क्या एक वृक्ष के ऊपर दो आ सकते हैं? मथुर के लिए वो इम्पॉसिबल था. ठाकुर ने कहा आ सकते हैं, आ गया. The matter ends there. Okay. अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी, जियोमेट्री और क्या क्या लगा रहे हैं. बॉटनी लगा रहे हैं. What has that to do with Mathur Babu and Sri Ramakrishna? Okay. The matter ends there. Right. Maharaj ji, the miracles of God, the miracles of nature are actually the wish of God, as Thakur said. No, यहाँ पे ये वो तो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं. संसार में जो भी हो रहा है ना, that is because the wish of God हो रहा है. हाँ. यहाँ पे तो है भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उठा है. And it happened the next day. That was the thing. Wait. वो उठा है और मथुर ने पॉइंट किया है. ठाकुर ने कहा भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं. मथुर ने फिर कहा कि क्या दूसरे इसके अंदर दो ऐसा हो सकता है क्या? ठाकुर ने कहा हो सकता है. Yes. और वो हो गया. The matter ends there. जी महाराज. In fact, अगर point is there is a higher law than this earthly law. Let Kundu decide. We go on discussing. नहीं ऐसा नहीं होगा. Kundu. No महाराज. Like like I thought that since there is a natural explanation to it now, so we can discard this example that way. But in the context telling that Mathur Babu had a doubt and he cleared the doubt, I think it's a point of view. Let there be a natural discussion, doesn't matter. Let there be a natural explanation now. But there, it was a miracle at that time. Yes, Maharaj. Correct. Okay. ठीक Maharaj. Yes. And next question, Maharaj. What was Thakur's weapon to destroy the demon of doubt? संशय राक्षस बोलते हैं. स्वामी जी ने भी बोला एक संशय राक्षस नाश महास्त्र. महास्त्र क्या है? अस्त्र, डायरेक्ट एक्सपीरियंस. Okay. First is direct experience. Second is faith. Faith is a tremendous power for Mahastra. और ऐसी कहानियां भी हैं. बच्चे में फेथ है और जैसा हो चाहता है वैसा हो जाता है. और ये वो उन्होंने अब ये फेथ जो है लोगों में कही. And we can also try it. Tremendous amount of faith. फेथ की तो कहानियां उपनिषद में, वेदांत सब जगह बहुत जगह मिलेंगे आपको फेथ. Okay. वो ग्वालन की कहानी है महाराज कथामृत में. वो जो दूध देने जाती थी ना नदी को पार करके, वही तो स्टोरी है. हाँ वो भी तो है, कहानी है वो. हाँ कहानियां स्टोरी है. पंडित जी कपड़ा उठाते जा रहे हैं. Faith and another is that this is it can be like the way he यहाँ ठाकुर को संशय राक्षस नाश महास्त्रम यह कहा गया है. आज के जमाने में धर्म का एग्जिस्टेंस, उसमें एक्सपीरियंस होता है, वो सत्य है, इसके संबंध में बहुत सारे संशय हो गए. और आज श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा उस धर्म रूपी राक्षस, संशय रूपी राक्षस को अपने जीवन के द्वारा नाश किया है. अपने जीवन और उपदेशों के द्वारा नाश किया है. उन्होंने बताया है कि अरे ये सब फालतू बातें नहीं है, ये सब कपोल कल्पित नहीं है,
ये धर्म जो है वो सत्य है, मैंने साधना करके बताया है, तो स्वयं साधना करके उन्होंने बताया है कि ये है, इसको स्वीकार करो। तो जहां तक संशय राक्षस नाश महाश्रम ये पॉइंट है, ये बात है, उसका अर्थ तो ये होता। अब तुम्हारा प्रश्न है क्या इसके ऊपर? नहीं, बस इतना ही था कि मतलब ही डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू हिज लाइफ, नंबर 1, थ्रू हिज टीचिंग्स, नंबर 2, and he emphasized on faith and direct experience. हाँ, ठीक महाराज और एक है उन्होंने कि स्पर्श मात्र डायरेक्ट से भी हो जाता एक्सपीरियंस को ना, उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस को महत्व दिया। यही बोला ना तुमने? हाँ हाँ महाराज, हाँ, लाइक ठीक। स्वामी जी को बोला कि तुम भी कर सकते हो। हाँ, वही तो that is the thing. He made it scientific. He made it scientific. हाँ। महाराज और एक एग्जाम्पल है जिस Then स्पर्श मात्र से भी करते थे। वो तो क्या है कि गुरु के ऊपर है, ठाकुर एक समाधि ये अपने अवतारी हाँ। पुरुष थे इसके ऊपर। हाँ। थर्ड क्वेश्चन। Then third question is, typical Calcutta people was characterized by skepticism and crass materialism, but the disciples of Thakur are also from Kolkata, and they were the product of the same educational system. How were they attracted to him? संस्कार के कारण। संस्कार। संस्कार, they had a stronger संस्कार। Okay. है ना, सभी लोग जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं तो सभी लोग एक प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये तो नेसेसरी नहीं है ना। घर में संस्कार है, फैमिली के संस्कार हैं, तो उसके अनुसार वो लोग मंदिर में भी जाते हैं, तो ये संस्कार हैं, फेथ है, आस्था है, इसके कारण। And last question, Maharaj, page 187. Thakur believed that renunciation is not for everyone, so he advised the householders to renounce mentally. Is it a compromise? What else? एक तरीके से महाराज, when we read ठाकुर बोला कि अब जो जिसका लास्ट जन्म है वो इधर आएगा, नंबर 1। माँ ने बोला है कि अगर तुम कुछ करो तो मरते वक्त जो है ठाकुर तुम्हें दर्शन देगा, तुम आ गए हो तो तुम ठाकुर के गोद में हो। Third is, she said that if nothing else is there, always remember that you have a mother. I am there to look up. So all these are hope, for the people who have not renunciated. But at the same time, when we talk of sadhana, we say that you have to do all these things. अगर वो ऐसे ही हो सकता है तो ये करने की जरूरत क्या है? तो ये ठीक है, अगर आपने माँ की बात कही कि ऐसे हो जाएगा, तो जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी तब देखें होता है कि नहीं होता है। अगर आप में ठीक ठीक विश्वास है, आस्था है, तो विपत्ति आएगी तो रिनंसिएशन, विपत्ति आएगी तब आपका रिनंसिएशन और आस्था होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। हो गया तो हो गया, मैं चिंता नहीं करूँ। That is the test. That is the test. Yes. हाँ, बोलने मात्र से नहीं होगा। इन्हें कई अलग अलग, प्रत्येक गृहस्थ जीव के लोगों के लिए तो कई प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग दृष्टांत एग्जाम्पल दिए हैं। So when we say that renounce mentally, ये खुद ही को विचार करके देखना पड़ेगा सही में मानसिक स्तर पे हम रिनाउंस किए हैं कि नहीं किए हैं। दिस इज नॉट दूसरे ने क्या बोल रहे हैं मतलब नहीं है। ऐसी परिस्थिति है तुम्हारी कि एक्सटर्नल रिनंसिएशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर इंटरनल रिनंसिएशन ऐसा करो तो कुछ फर्क। और जैसा है ना, एक कोई कहानी भी तो है, अरे तो तुम्हारा लड़का जो है वो बहुत बीमार है, वो अच्छा वो जा रहा है, अरे बीमार और बीमारी हो गई, और फिर एंड में पहुंचा, अरे मर गया। तो वो तो उसको पहले चचा चल रहा था, तो भी जब मर गया तो भी वो शांत बैठा रहा। तो उसकी माँ, उसकी पत्नी पूछती है क्या कर रहे हो?
तो कि मैंने सपने में देखा था कि मेरे 7 बच्चे पुत्र थे, सब मर गए हैं, तब मैं एक तुम्हारे लिए पढ़ रो या सबके लिए रो। तो ये मेंटल लेवल पे तो हुआ है, हाँ और मेंटल का टेस्ट है कि वो शांत बना रहा। तो मेंटल यदि कहा गया है तो फिर इतना गहरा होना चाहिए कि परिस्थिति में शांत बने रहोगे। सो हाँ, हम ठीक लोग क्या मान करते हैं कि मेंटली रिनाउंस करते हैं, मैंने मन से त्याग कर दिया भाई, मैं तो संसार में हूँ लेकिन मन से मैंने त्याग करा, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आ जावे, जब सब संसार चला जाएगा, बाहरी संसार जा रहा है, शांत बने रह सकोगे क्या? That is the real test. दैट इज the द test. टेस्ट। ठीक, सो इसके मतलब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है इतना कोई आसान नहीं है, ना इसमें ना भी ना बहुत ना है। ना 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 बिल्कुल ना आसान ना, यानी यू हैव टू टेस्ट, पे द प्राइस, चाहे कैसे भी कहीं भी हो। ये फंडामेंटल याद रखना। यस मान। तुम सन्यासी हो चाहे गृहस्थ, ठीक, और सन्यासी भी तो ऐसा है ना, ये बाहर से सन्यासी हो गए लेकिन मन में कामना वासनाएं भरी हुई है, ये भी तो है। तो फिर दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक मान। यानी नहीं, कैसी कितनी सारी कहानियां है ना कि उठा के जैसे चल दिया तो चल दिया तो चल दिया, 1 मिनट में छोड़ के चले जाते हैं, इसमें कहानी है ना। कहा था ना कि अरे वो एक एक त्याग कर रहा है, एक एक त्याग कर रहा है, एक एक पत्ती त्याग कर रहा है। मैं अभी चला। हाँ, तो उसने कहा कि अरे ऐसे क्यों होता है, क्या होता है? देखिए तुमसे तो अच्छा है वो, तुम तो मेरे लिए, मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, देख मैं चला। तो टू टॉक ऑफ रिनंसिएशन, मेंटल रिनंसिएशन और दिस रिनंसिएशन, किताबों में लिखा है गृहस्थ को लिए मन से करोगे, लेकिन ऐसा पक्का होना चाहिए कि क्षण भर में छोड़ के चला जा सके। ठीक। Maharaj, in reality, actually, mental realization is equally in sannyasis also. हाँ, यस यस, हमारे लिए तो और इम्पोर्टेंट है। हाँ, that is the thing. यानी हम लोग आ गए, संन्यास हो गया हमारा, और बैठ के आश्रम में बैठे हुए हैं, सब फैसिलिटीज हैं। अब यहाँ से अगर ट्रांसफर भी थोड़ा सा होगा ना तो 10 बार सोचने लग जाते हैं, अरे वी गेट अटैच। नहीं महाराज, दिस वाज ये कंफ्यूजन था, नाउ इट इज क्लियर महाराज। No, you take it, spirit of renunciation has to be very strong. यस। चलो इतु घोष। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। यस, क्या हो गया, कहाँ गए इतनी देर? हाँ, कितु जी है तो सही। महाराज, हाँ, महाराज एक प्रश्न है मेरा। One day the master said from the text, one day the master said, do you know why I touch a man? महाराज आपको सुनाई पड़ रहा हाँ, है? सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। touch a man while talking to him. One day the master said, Yes. obstinate. आवाज नहीं आ रहा है। वो डेटा लैग कर रहा है, इंटरनेट काफी वीक है उधर। अब पेज नंबर बोलो तो क्या है सर? My question is, now, does this understands the truth correctly denotes they were uplifted in spirituality? क्या है पेज नंबर बोलो तो, पेज नंबर। Page number 186.
पेज 86 क्या है? लाइन थर्ड पैरा, थर्ड पैरा, end of third para, from do below, you know from why I touch a man while talking him? My touch reduces his power of obstinity and he understands truth correctly. Is that the question? यही है ना? Yes, Maharaj, that's her question. She's asking, does the master touch lift the person up spiritually? No, does a touch touch a man while talking to him? My touch reduces power of obstinity. And he understands. It is not a question of spirituality. And he understands. डिफिकल्टी जो है वो ईगो की ऑब्स्ट्रक्शन है, वो दूर हो जाता है. He removes the obstacle. Oh, Removes the obstruction. okay. Only the obstructions. Yes. Okay. Hello, It next. means whenever you... Yeah, Pranam Maharaj. Maharaj ji, Pranam Maharaj ji. Maharaj ji. Yeah, Itu, any other question? No. Ji? Okay. I understood the answer. Okay. देवाशीष. महाराज जी, अभी इस सिलसिले में अभी आपने बताया इतू जी को, जो कि उनका टच से जो ऑब्स्टिनेसी, ईगो हट जाता है, ऑब्स्टिनेसी हो जाता है, तो एक तरह से तो स्पिरिचुअल का पाथ में आगे बढ़ जाता है. No, don't make it like that. There are spiritual path में obstructions भी है. There is condition like obstruction. पतंजलि योग सूत्र के अंदर बाधाएं बताई गई हैं. ये तुम्हारा फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है कि आगे चला जाता है. Here I am just only told that obstruction goes, that's all. Obstruction goes. No ego, but he does not practice. What will happen? हाँ महाराज जी, ये तो बात आपने सही बताया, लेकिन स्वामी जी भी ने एक बार गुजरात में बड़ौदा में ऐसा किए थे. एक आदमी बहुत ही आर्गुमेंट कर रहा था, उसने छोड़ दिया, तो वो 3 दिन हरिनाम करते रहा. तो ये ना, वो तो ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद उसने किया तो हाँ, मतलब वो तो कन्वर्टेड हो जाते हैं. नहीं वो ना दैट इज because there is something in them already. ओह अच्छा. Thank you Maharaj ji. Thank you. You don't confuse the two things. One is removing the obstruction. हाँ. Only you're talking about removing the obstruction. जी महाराज जी. जी महाराज जी. ओके महाराज जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज 176 में. From his birth he was endowed with purity, simplicity, love, devotion, truthfulness, and non-attachment. My question is, these qualities are inherent to avatar. What happens to Jiva? Are they supposed to inculcate and practice these qualities? There are various types of jivas also. Asuri jiva, Devi Sampat. There are cultured children and religious families. So they are also benefited when obstruction goes away. Why only avatar? Normal, greater good sanskaras are there. So basically it is sanskara. Yes. Okay, next में जाता है, how love for God, one can overcome grief and misery, pain and poverty. How love for God, one can overcome grief and misery, pain and poverty. ये तो मैंने पूछ लिया था. You see, mother loves the child. Her personal grief and misery, pain and power become secondary. जैसे because of love,
because a mother, when mother loves the child, her personal pain and poverty become less. Similarly, wherever there is love, suffering becomes less. Now, what is your question? नहीं समझ में आ गया महाराज जी. Question is answered महाराज जी. Okay. Thank you. Now, question number C. How at Kamarpukur the atmosphere gave Sri Ramakrishna unspeakable bliss at all times. कमरपुर का जो environment इस description में मिलता है, उससे तो ठाकुर जी को हमेशा bliss में मिलता है. तो ये कैसे? What is the reason that he is always in bliss? No, because it is the part of a big subject. You know, what page number बोलो तो? पेज नंबर तो एक काफी माने लंबा उन्होंने कमारपुकुर का डिस्क्रिप्शन किया है शुरू से. That is what I say. पेज नंबर बोलो. पेज नंबर है बता रहा हूँ मैं. पेज नंबर 176 पे ही है. 176? हाँ 176 में हम जितना डिस्क्रिप्शन कमारपुकुर का मिलता है शुरू से लेके अंत तक, तो उसमें देखते हैं ठाकुर जी टोटली इन ब्लिस, ऑलवेज इन कमारपुकुर, looking at the nature. तो ये कैसे how at Kamarpukur the atmosphere gave Sri Ramakrishna unspeakable bliss at all times. This is general question. No, because it is a natural atmosphere. People are simple, people are joyous. So it depends upon the atmosphere. Like the environment, paddy field, blue sky. Say for example, Kashi is a city, and still there is a difference. The effect of atmosphere is produced. What is the question? I don't understand. Question is every place, every village, every city has an atmosphere. New York, Bombay, vibrations. They have got atmosphere, vibration. Similarly, Kamarpukur has vibration, Kashi has vibration. Have I answered your question? महाराज जी कमारपुकुर में तो ऐसा कोई तीर्थ भूमि तो पहले था नहीं, before Sri Ramakrishna was born. So that you have to do research and find out. Okay. Have you done research? We don't know. We don't know. Yes, we don't know. Yes, right. एक मिनट, यहाँ पे क्लियर लिखा है, imagine Kamarpukur 170 years ago, she was like the village queen of Bengal, full of green trees, vast meadows, lakes and ponds, fruits and flowers, huts and temples. These villagers were bright, simple and unpolished. Blue sky above, green paddy field. ये कंप्लीट इन्होंने बताया, वर्णन कंप्लीट दिया है कमरपुकुर पर. तो इसमें ब्लिस कहाँ मिलता है? ब्लिस कहाँ से मिलता है इसमें? अरे एटमॉस्फेयर से ब्लिस मिलेगा ही ना. अच्छा सीरीन एटमॉस्फेयर है. अच्छा ये देवाशीष, तुमको ब्लिस किसमें मिलता है? ब्लिस मिलता है when you are connected with God. वो तुमको मिलता है ब्लिस कभी? नहीं. जगह से ब्लिस तो मिला. मतलब ये है कि तुम्हारे अनुसार ब्लिस जैसी कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट कनेक्टेड टू गॉड. ये तुम्हारी डेफिनेशन है ब्लिस. Bliss is not an external thing, it is an internal thing. अब ब्लिस जो है, माँ बच्चे को गोद में लेती है तो उसको ब्लिस मिलता है कि नहीं मिलता? ब्लिस मिलता है. जी महाराज जी. तो इंटरनल है ना, वो एक्सटर्नल तो नहीं है. एक्सटर्नल चीज है फिर भी इंटरनल हुआ तो. जी महाराज. जयराम पाटिल, अब कमारपुकुर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है तो ब्लिस मिलेगा. जी महाराज जी, तुम्हारी समझ में. थैंक यू महाराज. अभी भी अगर कमारपुकुर जाएंगे ना तो सेम एटमॉस्फेयर इज आल्सो देयर. ब्लिस के लिए ब्लिस मिलता है अभी भी. अरे बनारस जो है इतना पुराना हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, क्राउडेड हो गया है, अभी भी यहाँ पे आओ तो शांति मिलती है. यस. हाँ, ये तो बोल रहे, जगह का महात्मा रहता है.
जी महाराज जी। In 1970, I went to Hasanpur village, and there was so much bliss because it was a village. Which village? It was a village in Haryana, Hasanpur, but because it was a village, it gave me more bliss than living in a city at that point of time. अच्छा, calm and quiet. अच्छा, serenity. Okay, thank you महाराज जी. Serenity, greenery. Next question. Next question में जाता हूँ महाराज जी. Question number 2, page 178. What is the reason that British rule could bring Western civilization and Christian religion to India? What was the reason that British rule could bring Western civilization and Christian religion to India? Because they have got power, political power. They want to rule. Because they had political power, they made, he already written, they have made Christian, English as the main language. Wherever they were teaching, what is that? Here they have got power, they will force people to become Christian. They will teach, preach, give Bible every day. Free Bible for giving it to everyone. They will ask students, read and tell us, tomorrow we are going to ask. Maharaj ji, there are two things why I would like to know. Number one, is it the fear or the stick or the rule that if you do not do it, then you will be punished? Is that? अरे politics हम मार डालते हैं लोगों को. और क्या? Or people will be killed. If I don't read Bible, I will don't get marks. Okay. ठीक है महाराज जी. सेकंड क्वेश्चन है. नहीं, मैंने इसीलिए पूछा क्वेश्चन कि हमारा हिंदुइज्म में देयर आर फ्लॉज लाइक कास्टिज्म, द ब्राह्मण्स यूज्ड टू सप्रेस द शूद्रस एंड ऑल, and untouchabilism, all these social evils cropped up heavily at that point of time. That is why they have embraced Christian religion. Is it the point? That is the reason I asked this. Both sides. Because don't touch me चल रहा था. अरे हाँ बाबा, both sides. There are faults in the religion itself, and also the preaching of Christianity. Degeneration of the religion, Hindu religion. Why this question? I don't understand. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. समझ में आ गया महाराज जी, थैंक यू. नंबर व्हाट वर द ड्रॉप. अच्छा, ये तो हो गया, बी क्वेश्चन हो गया. सी में व्हाई वर इंडियंस dazzled by Western science, philosophy, literature, materialism? This situation is still prevailing now in the so-called educated society in India. No, so what is your question? My question is that what is the reason they are getting dazzled by Western science, philosophy, literature, and materialism? What is it that? Because everyone everyone is interested in materialism. तुम पैसा कमाना चाहते हो तो materialism में जाओ. 90% people want materialism. Okay, understood. Thank you. Next question में जाता हूँ. Question number 3, page 180. Language was the carrier of ideas, and the dominant idea at this time was pure materialism. My question is it the economy? Okay, it has been answered. Next question में जाता हूँ मैं. How did widow burning system crept into society? Widow burning system society में कैसे crept किया? माने how did it come in the society in the Hinduism? Which system? Yeah, what widow burning? Yeah. Widow burning at that time. It was at that time. कैसे आ गया ये हिंदुइज्म में? आया वो यानी जो मर गई है, आदमी मर गया है, विडो है, तो उसको समझते थे कि ये भूतनी हो गई है. तो अब विडो after the death of the husband, she behaves wrongly. She becomes highly shocked. So she starts behaving in a particular way. So started thinking, अरे ये भूत हो गई है. She has become a ghost.
So Yeah. that was the time when this widow worship, widow was there. Widow महाराज burning was there. प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसे ही करते थे, प्रॉपर्टी। It is बाबा क्या क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है महाराज जी, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, why was Keshav Chandra Sen inspiration from Christ's life and message when the Hindu scriptures are gold mine of spirituality? Our Hindu scriptures are gold mine of spirituality. Why did a person like Keshav Chandra Sen was teaching Christ's life and this is a message? Why was he doing like this? He was a quite learned person. Have you read Bible? नहीं महाराज जी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, have you read Bible? नो महाराज जी। Then you cannot comment. Okay. I have read Bible. I have read Imitation of Christ. They are highly inspiring. Once you start reading, if you are a religious person, you get lot of benefit. They बहुत है, जैसे है ना, वेद है, पुराण है, जिस प्रकार का है, वो इतनी ऑर्डिनरी चीजें नहीं है ये। नहीं, मेरा ये नहीं है महाराज जी। With due respect to Bible, 10 commandment all. And अगर वो उसको अपने उसको ये हो सकता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हिंदुइज्म को स्पष्ट रूप से बताने के में कोई अच्छा आदमी नहीं मिला हो। He did not get the right person to teach him Hinduism. He might have been more attracted towards Christianity. He might have got priests. By priest, by that he was very impressed by these priests. And when he came to Sri Ramakrishna, then Hinduism also, he also got learned about it. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you. But I suggest to you, you read Bible. Maharaj ji. New Testament, don't read the Old Testament. Thank you, Maharaj. Thank you. स्वामी जी, आपने सर्मन ऑन द माउंट हमारे साथ कवर किया था। अच्छा, ओके। उसमें अच्छा, ओके जी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो आपने बताया, हाउ श्री रामकृष्ण यूज द ग्रेट वेपन फॉर डिस्ट्रॉइंग द डेमन ऑफ डाउट। प्लीज गिव सम एग्जांपल्स। हाउ श्री रामकृष्ण यूज the great weapon for destroying the demon of doubt. Please give some examples. उदाहरण ले लो। वो मथुर बाबू को उन्होंने कहा भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान क्या एक ब्रांच के ऊपर 2 रंग के फूल ला सकते हैं क्या? तो हाँ ला सकते हैं। वो फूल ला के दिखा दिया। Yes. तो डाउट आया था मथुर बाबू के दिमाग में, ठाकुर ने ये करके बता दिया। जी महाराज। मास्टर अपने श्री रामकृष्ण में डाउट हुआ था कि ये बोलते हैं कि पैसा नहीं छू सकते हैं, मैं तो छूता हूँ, किसी को तो नहीं होता। तो उन्होंने पैसा उनके बिस्तर के नीचे छिपा दिया, श्री रामकृष्ण नहीं बैठ सके। तो इस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा श्री रामकृष्ण ने ये संशय राक्षस को नाश किया। जी महाराज जी। विवेकानंद जी तो सारा जिंदगी डाउट करते चले गए और सारा विवेकानंद सारा जिंदगी डाउट किया है, वो रिमूव करते चले गए। हाँ जी महाराज जी। ओके, थैंक यू महाराज जी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन है। After visiting this place a few times, they will realize that their relationship with their wives and children and relatives are only for a few days, and they will automatically develop non-attachment. So मेरा question है, how does it happen, and does it happen automatically by visiting the holy persons anywhere and everywhere? होली पर्सन ठीक होली होना पड़ते, अच्छा भक्त होना चाहिए और भगवान में वैराग्य होना चाहिए। जैसा संग होगा उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हाँ पड़ेगा।
अगर भौतिकवादी व्यक्ति हो, शराबी के साथ तुम बार बार रहोगे तो शराब पीने की आदत आ जाएगी ना। जी। तो इसी प्रकार से अगर आप सत्संग में रहेंगे, होली सत्संग में रहेंगे, अच्छी कंपनी में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, आके बनारस में रहो, महीने भर में तुम्हारा दिमाग जो है बदल जाएगा, तो जी वैराग्य आ जाएगा। हाँ, तो मेरा तो इस इसमें क्या दिक्कत है? हाँ महाराज जी, इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में आया कि अगर होली पर्सन मुझे नहीं मिलता है, तो अगर मैं भगवान का या श्री रामकृष्ण का मेडिटेशन में हूँ या उसका जप कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो दैट इज अ कंपनी ऑल्सो आई एम गेटिंग श्री रामकृष्ण, उसमें भी हो सकता है क्या ये चीज? होने को हो सकता है, लेकिन कोशिश करो ना, होली में अपने आ जाओ ना, बनारस रहो 7 दिन। Yes. जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। हाँ, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, और एक क्वेश्चन लास्ट था महाराज जी। हम अभी अभी आपने बताया, शिवानी जी को बताया या किसी को बताया कि ये जगत अनित्य है, भगवान सत्य है। तो ये चीज हमें सब जगह मिलता है, लेकिन अनित्य हम क्यों बोलते हैं, मिथ्या क्यों नहीं बोलते हैं? तो तुम्हारे ऊपर, तुम देखो, तुमको जो अच्छा लगे बोलो। नहीं, मैं किताब में देखा है, सब जगह में देखा है। ये वेदांत, अद्वैत वेदांत उसको मिथ्या बोलता है। मिथ्या भी बोलते हैं, मिथ्या भी बोलते हैं। अद्वैत वेदांत उसको मिथ्या बोलता है। हाँ, सत्य के उल्टा है मिथ्या, सत्य के अपोजिट मिथ्या है, तो अनित्य बोल देते हैं सब जगह, इस किताब में सब जगह लिखा हुआ है। ना, मिथ्या के डेफिनेशन है। मिथ्या की डेफिनेशन दूसरी है। यत असत भासमानम तत् मिथ्या। मिथ्या वर्ड के अंदर असत्य को स्वीकार किया है। जो असत है लेकिन प्रतीत होता है सत्य, उसको मिथ्या बोलते हैं। सांप सांप दिख रहा है लेकिन रस्सी है, तो रस्सी को सांप को असत नहीं बोला, मिथ्या बोला। थोड़ा डिफरेंस है फिलोसॉफिकल, समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, हाँ महाराज जी। द डिफरेंस बिटवीन मिथ्या एंड असत। असत तो सब बोल दिया, लेकिन मिथ्या क्या है? जो असत है लेकिन जो सत्य दिखता है उसको हम मिथ्या बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जगत मिथ्या है, ये आप मानते हैं ना? जगत मिथ्या इसलिए मिथ्या है कि क्योंकि दिखाई देता है लेकिन वो सत्य नहीं है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं। प्लस अनित्य भी है, मतलब है कि चेंज अरे होती है। अनित्य उसमें आ गया, मिथ्या में मिथ्या जो है वर्ड है उसमें अनित्य आ गया। अच्छा जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम। ओ बाबा, चलो निवेदिता। हाँ महाराज, पहला प्रश्न है, हाँ, हाउ ठाकुर हैज चोजन कामारपुकुर वेस्ट बंगाल एज हिज बर्थ प्लेस। दुनिया में तो बहुत सारी जगह पर बंगाल को कामारपुकुर को ही क्यों चुना? वो जाने भाई, वो जाने, हमको क्या मालूम। अच्छा, फिर मैं उसके बाद पूछा है, इज इट ड्यू टू द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस एंड पर्संस, उनके फादर मदर इतने प्योर थे इसलिए क्या? वो सब हम नहीं जानते, कैसे जाने? अच्छा लगा उनको वहां रहने, अगर वो, ये क्या है उसमें, ये कोई प्रश्न होता? वो काशी में आना चाहिए तो काशी नहीं आए, वहां चले गए। अब क्यों चले गए मैं क्या जानता। हम लोग के लिए तो अच्छा हुआ। मतलब दूसरा प्रश्न है भारत, पहले ये बोल रहे हैं आर्टिकल में कि 4 नदी क्रॉस करना पड़ता है, पर अभी हम लोग जब कामारपुकुर जाते हैं तो 2 ही ब्रिज आता है। हमको तो मालूम ही नहीं है, बट व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले 4 ये थी, अब 2 4 हो नदी गई। कहाँ चली गई? दो नदी अब कहाँ तुम, चली गई? वो हमको तो मालूम ही नहीं कि 4 नदी क्या, तुम ही बता रही है 4 नदी। That is a geographical question. हाँ, क्या है वो? रीड उसको, पैसेज को पढ़ो, नदी के बारे में पढ़ो।
how different are present-day Calcutta and Kamalpur from what they were in the 19th century. Then one could reach Kamalpur from Calcutta only by crossing the Ganges, Damodar, Mutsevri, and Dwarkeshwar rivers with great difficulty, whereas now there are bridges. ये sentence है पूरा. Page number 1. Damodar, Mutsevri were rivers with difficulty. अब ब्रिज हो गए हैं. हाँ, अब ब्रिज हो गए. अब तो क्या है, तो अब कौन सी ये मुंडेश्वरी और द्वारकेश्वरी रिवर देखी तुमने निवेदिता? मैंने खाली वही तो दामोदर नदी दिखती है और गंगा वो दिखती है, ये बाकी दो नदी तो दिखती नहीं. अब तो हम क्या बताएंगे तुमको, हम तो उधर जाते भी नहीं. चलो तीसरा ये प्रश्न भी है, कोई क्वेश्चन है? अरे भाई थोड़ा अकल लगा क्वेश्चन करो ना. देने जाएंगे. Anything you read and I ask you question. आप जानते हो. Third question. Third question है, why 19th century was revolutionary time for the West Bengal and whole India? Because historical event है, renunciation. ये लोग रिवोल्यूशनरी थे, भारत को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, और अंग्रेज लोग जो है बंगाल में ही रहते थे, वहाँ कलकत्ता ही कैपिटल थी, तो वहां पे वो झगड़ा चलता था. Yeah, we will have to read the history to find out why this happened. और एक रेनेसेंस रिलीजन का क्या चल रहा था? What रिलीजन का नहीं, टर्मोइल, पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था. रिलीजन का भी चल रहा था. What going on? पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चल रहे थे भाई. कैलकाटा का और ये भी रिलीजन का भी तो चल रहा था ना. क्या चल रहा था बताओ? वो जो क्रिश्चियन ज्यादा हो जा रहे थे ना, और हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा था, वो इसलिए. तो हो गया, तो हमारा जवाब हो गया. उसके बाद का प्रश्न है, इस तत्वबोधिनी समाज जिसे साधारण समाज जो हम लोग कथम वृत्त में पढ़ते हैं, वो ऑफ ब्राह्मण समाज है कि नहीं, सेम है क्या? ये हमको तो हमने तत्वबोधिनी तो मालूम नहीं, तत्वबोधिनी क्या है और सभा है या वो ये सब कुछ मालूम नहीं. हम मालूम नहीं. ठीक है. और ये पुरानी रोशनी नई रोशनी वो क्या है? उसके बाद वाला प्रश्न तुम जानो. अच्छा, व्हाट कॉम्प्रोमाइजेस वहाँ पे सोशो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे बंगाल में. यही बात है. हाँ, क्योंकि पुरानी वो रोशनी बोल रहे थे, वो विडो बर्निंग को बंद किया और कैलकाटा यूनिवर्सिटी तैयार किया, ऐसा बोल रहे थे. कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, ये 3 चीजें उन्होंने की. अच्छा, चलो, थैंक यू. और छठवां प्रश्न, व्हाट कॉम्प्रोमाइज डिड द लीडर्स डू टू स्टॉप द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस? मतलब कॉम्प्रोमाइज क्या किया? यहाँ पे एक वर्ड है ना, they did compromise, लीडर्स ने कॉम्प्रोमाइज किया. तो क्या कॉम्प्रोमाइज किया? यानी वो सोशल, सुनो, जो अंग्रेजों ने कोई बातें जोड़ी होगी, उसको उन्होंने किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके सोशल हिंदू सोसाइटी के साथ में उनको एक्सेप्ट किया होगा. इस प्रकार की कई बातें की होगी. अब ये बिना डिटेल किए इसको कोई समझा नहीं जा सकता. और ये सारा का सारा है, ये बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है. व्हाई डू यू गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस? और एक प्रश्न लास्ट है, वो केशव सेन थे, जैसे अभी देवाशीष ने भी पूछा है, व्हाई ठाकुर यूज्ड टू लव हिम सो मच इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिश्चियन आइडियाज? क्या कहा?
केशव सेन को ठाकुर बहुत प्यार करते थे ना। हाँ, तो मेरा प्रश्न है क्योंकि कि व्हाई डिड ठाकुर लव सो मच केशव चंद्र सेन इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिश्चियन आइडियाज? तो श्री रामकृष्ण को क्रिश्चियन आइडिया से कोई झगड़ा था क्या? ये कहीं लिखा है? नहीं। तो फिर हाँ, उनमें धार्मिक भाव था, और क्रिश्चियनिटी में तो है धार्मिक ईसा भाव। मसीह को इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट करो, बाइबल पढ़ो तो कितना अच्छा लगता। हाँ, तो वो अच्छे, उसको फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी तो अच्छी बात ही है। और खुद ठाकुर ने भी तो बाद में क्रिश्चियनिटी की। फिर 3 दिन ठीक तक है क्रिश्चियन महाराज, बने बस रहे। यही प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, बस हो हो गया गया? महाराज। अच्छा, अच्छा मालिनी, यू वांटेड टू टेल समथिंग? यू आर देयर, स्टिल देयर और गॉन? Yes, yes, Swamiji. Pranam, Swamiji. You wanted to tell something? Sorry, I obstructed you. No, 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 I'm taking the questions. I take the questions. No, no, you wanted to tell something, no? No, it was about Ganga. But that you don't want to unnecessarily bring in the narrations, otherwise it's endless. So you cut me off. That's correct. So should I start? Yeah, no, it is irrelevant, it becomes secondary. Yes. So I'll Okay. start with the question. Yes. Yes, Swami. Question 1. The more learned and sophisticated one gets. Page number. Page number, I think it's 175. I suspect the more learned, 175. 175, page 175. The villagers were simple and unsophisticated. That's the Kamar Pukur villagers. So my question here is, the more learned and sophisticated one gets, the further one gets from God, one's real nature. How does one remain simple and innocent and unsophisticated despite studying and hearing the Shastras? What are the precautions that one needs to take in Vyavhar in this regard, Swamiji? How do you keep that innocence? Because Thakur, he heard so much of the Shastras, but he was so pure. How does one not become, how does one keep that innocence of that villager and innocent mind? How do you do that? इतना पढ़ के भी वो बहुत ज्यादा मत बोलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा। It is an excellent question you have asked. That worldly atmosphere में रहते हुए, various script चीजें पढ़ते हुए, हम कैसे अपना इनोसेंस और चाइल्ड लाइक नेचर बनाए रखें? This is an excellent question. और उसके लिए you better would be that we read the lives of the great of अवतार। यानी स्क्रिप्चर में शास्त्र के डिटेल्स पढ़ने के बदले read रामायण, read Shri Krishna, life of Shri Krishna, yes, life of Shri Ram Krishna, yes, ये पुराण पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा जो इनोसेंस जो है वो बचा रहे। Oh, wonderful answer. It will get a boost. Okay. Yes. Thank you. Wonderful. Really. Thank you. Page. Even the reading the lives of Bhakti saints also, Maharaj. Yes. But particularly Puran जो है ना. Yes. True. Yes, Swamiji. Like even when you start reading Tulsi Ramayana, Vyavhara ka itna sweetness.
Huh? True, true. The Want to story command is Navachana Utaka. Second question. page, बुखार में जाके दिमाग खराब हो जाता है, बाकी हम चलो राम चलो कमेंट नहीं करो भाव, सतीश चुप रहो. page 175. As the village women sit on its ghats and clean their utensils, pots and pans, they share their stories of joy and sorrow. Now, my question here is, Swamiji, the inner life begins with the unfolding of the heart and not from the intellect. In today's world, everyone is separated by huge walls of ego, a projected image. How can one realize the Atman without unfolding? That is, opening the doors of one's heart, sharing one's real thoughts and ideas. Because here, please advise us, just intellectual study is not helping the heart. In the sense, what I'm trying to say is that जब तक आदमी का हृदय totally किधर खुले ना, and he doesn't express. Yes. ठीक है, सुनो. Yes. उसके लिए भी जो मैंने अभी कहा, जो तुम्हारे लिए है, वो ये है, अभी तक तो पुराण पढ़ने की बात है, उससे कई बातें सब सुलझ जाएंगी. Second is that take out some time for 1 week or so and go and stay in some ladies' ashram. Secondly, if possible, you may find out some village, और विलेज में कोई आदमी आपको मिल जावे, पहचान का मिल जावे, उनके घर पे 5-7 दिन जाके रहो, so that you will be exposed to the village atmosphere, even though they might be modernized from time, and they may not be like that before, but you will be get that. So these two suggestions I have. Go and stay in some ashrama for women. Yes. And secondly, go and stay in some village. Right. Yes, because even Kamarpukur now, even if you stay there, it's very good. Fine. Thank you, Swami. So, thank you. यहाँ एक लाइन आखिरी में लिखी गई है विलेजर्स के लिए. They are simple, gentle, honest and religious. Villagers are. So if we go there, we can get all these 4 things. Even today. Yes. हो गया? महाराज जी, excuse me महाराज जी, एक क्वेश्चन मैंने. Wait, please don't comment. Please don't comment. It will continue. Yes, the third question. Page 176 again. Thakur learned how, with love for God, one can overcome grief, misery, pain, and poverty. Swamiji, how does one get such pure and innocent love for God? You see, it is through satsang. Right. You know, you read Puranas, Puran ki baat to ho gaya, Puranas, etc. But through satsang only we can get love for God. It is not easy. True. Yes, Swamiji, that means more. And then if you have some bitter experience of the ugly world, that we have stomach full, that we don't want, we want satsang. No, vairagya from the world must be also come, na? Yes. Without vairagya, you will not be attracted towards love, God. Yes. True. You know, throughout our life, we go on getting blows from the world, and yet we don't get love for God. It is unfortunate. And the saints are there. In their life, 1 or 2 blows are there, and they completely give up the world and go to God. Oh yes, we drag on. Swamiji, 4th question,
page 176. She, nature, imparted her scientific wisdom to him. He found unity in diversity. That is Thakur. He saw God manifested in the fields and lakes, fruits and flowers, birds and beasts, temples and cremation grounds, men and women. Swamiji, what practices should one do to see God in nature, that is in inanimate objects? I'm asking you this question very specifically. There's a reason. I remember hearing your lectures in which you said when you were young, inanimate busts would appear real to you. It was very living. So I want to know, how does one, they say the life of the great is the sadhana of the sadhak. So what should we do? How do we get there? You see, your question is seeing God in everyone, isn't it? In everyone and everything. Everything seeing God, isn't it? That is your question. Yes, yes. You see, that is the highest realization also. So, you can begin with few things. Yes. Unfortunately, it's very, very difficult. Even in the picture of Thakur, we see picture and not Thakur. Even in picture of God, Krishna, we see the picture and not see the Krishna. Right. If that is the situation, do you think you'll be able to see Krishna in the table? It is so very difficult, so very difficult. Right. Right. Intensify your spiritual practices and pray to God. Nothing more I can say. Right. So very difficult. Right. It comes through Guru's grace. The last word is that you get Guru's grace, you got it. Chalo, next. Thank you, Swamiji. Okay. महाराज जी, Thank you. महाराज जी, एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर गया, मैंने क्वेश्चन yes, now you can speak. हाँ महाराज, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने स्किप कर गया था, आई एम वेरी सॉरी। उसमें था श्री रामकृष्ण के पास जब स्वामी जी ने पहुंचे तो ये क्वेश्चन किया था, हैव यू सीन गॉड? उसमें ठाकुर जी ने बता रहे हैं, यस आई हैव सीन गॉड, आई सी हिम as I see you here, or more clearly. God can be seen if one can talk to him, but who cares for God? My question is, what is the meaning of I see him as I see you here, only more clearly? Usually it is the self-realization we talk about as God realization. How can you see him more clearly? Kindly explain with example. It is the same language. I understand myself clearly, isn't it? Isn't it? इसमें कहा ना myself. Isn't it? We understand ourselves very clearly, myself, isn't it? And when Sri Ramakrishna says, I see God more real, means I see God as Atman. There is no difference between Atman and God. That is the meaning of what meaning is more clear. It's not a third person I can show. No. There is not a third thing. I see God more clearly means I see God as myself. I and God are one. Oh, thank you, Maharaj. Thank you. Pranam, Maharaj. Pranam. Okay. Sorry to obstruct you. Sorry to obstruct you today. नहीं महाराज जी, ठीक है। मैंने बीच में मैंने सोचा कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैं पूछा। ओके ठीक है, सब बंद करें। हाँ जी महाराज। नमस्ते निवेदिता जी का क्वेश्चन। निवेदिता जी का क्वेश्चन है। महाराज जी, मेरे क्वेश्चन नहीं आए। बोलो, चलो करो। जिसके क्वेश्चन बचे हैं तो करो। तो हम हाँ। तो महाराज शिवानी जी ये मोटी नती जी आई।
My question was the arrival of Sri Sri Thakur at the time when Calcutta was in a turmoil, when the Bengal youth were specially affected by the Western education, missionaries, etc. Would it be right to say that it was a renaissance of religion, especially with the advent of Thakur? Yes. Yes, sir. Because renaissance of religion तो हो ही रहा था, लेकिन एक special impetus is renaissance मिला because of Thakur alone. Can we say वो that? तो ऐसा है, ये तो बोला जो श्लोक है ना, स्थापकाय च धर्मस्य। धर्मस्य। हाँ, That is self-explanatory. Yes. हाँ, स्थापकाय च धर्मस्य। Right. The avatarhood itself was the coming up of. And this portion has been discussed by Shardanand ji and many scholars. जी. In the Leela Prasang, Maharaj? Leela Prasang. हाँ, लीला प्रसंग में तो बहुत डिटेल। Okay, second question, Maharaj. I have page 184. आप कहते हैं that one not sit crossed over the other before a sadhu because it increases rajas. Could you please explain? वो बैठने का पद्धति, बैठना है ना, पैर को ऊपर करके बैठना, ये बोला ना तुमने? It says rajas. ठाकुर कहते हैं ना? Yes. वो पोजीशन ऑफ द फुट ना? जी. हाँ, तो वो ऐसा है, sort of a indecent sitting is showing that ego. हाँ, let us remember, when you sit humbly. वो पैर ऊपर करके बैठा रहे हैं, जाने मैं बुद्धिमान हूँ, तुम मेरे को प्रणाम करो. That is the idea behind it. Oh, the posture and posture का problem. And last question. Yeah, I went beyond and made up page 5. So here is 6. हे भगवान, बंद करो ना फोन, किसका है? सरला का फोन है, बंद करो. Please. सब तो हो गया. हमारा क्वेश्चन है, एक जगह ठाकुर कहते हैं, when Thakur was asked by some women from Calcutta as to why their minds were so restless, so he replied, there is still the smell of childbirth about you. What does he mean? यानी वो ये है कि the calm lust in some form or the other is persisting. Oh, I see. Lust यानी woman का husband के प्रति attraction. And the taking care of the child. Okay. यानी these worldly sanskaras are continuously always there with them. वो लोग क्या समझेंगे? Right. आवाज कम रही है. 6 में था, मैं 205 तक पढ़ गया था पेज, तो इसलिए मेरा सवाल करने में भी मैं लेट हो गया. Okay. हो गया? Yes. अच्छा, और कोई बचा? निवेदिता, तुम्हारे क्वेश्चन हो गया? शिवानी जी. नहीं, शिवानी का पहले ही हो गए. नहीं, वो कर रही थी ना. हो गया. शुरू में हो गया. और कोई बचा? संजय? नहीं बचा तो शांति मंत्र करेंगे. तो तुम बोलो, शांति करें, मंत्र करें कि नहीं करें? जी महाराज करें. जी महाराज. ओम शांति. प्रणाम.